Everybody watching this video might be thinking that why the hell I am giving you a 70 days plan when only 40 days are left for phase 1. Yes, I am giving you 70 days plan and not 40 days plan. There is a reason for it. If I ask you a question guys, आपको लगता है कि starting from scratch आप 40 days में सारा कुछ कर पाएंगे 6 के 6 सब्जेक्ट? I would say that's not possible unless and until you have that specific background. So the idea is to have a long-term consistency rather than short-term intensity. आपका long-term goal that is selection in SEBI पूरा होना चाहिए and it's not about just having short-term satisfaction कि सब पढ़ लिया है लेकिन एग्जाम में जाके कुछ आ नहीं रहा है. ठीक है, तो that's why I'm giving you an integrated plan for phase 1 and phase 2. I'll discuss that what you can cover before phase 1 and leave to be done after phase 1, that is between phase 1 and phase 2. ठीक है, और ये स्टडी प्लान पेपर 2 के लिए है और ये तभी यूजफुल है if you believe in two things. One is believe in yourself that you can do it, you will give your 100%. Very, very important. And second is that you believe in your mentor. You believe in what I'm saying. You follow what I'm saying blindly. तभी this study plan is going to be useful to you. ठीक है, शुरू करते हैं. सबसे पहले देखिए, there are 6 subjects: finance, management, costing, company law, economics and accounts. Now, as I told you, your objective is to get 40 marks in phase 1, but at the same time, your objective should be to get maximum marks in phase 2. ठीक है, तो yes, our long-term objective is to get maximum marks in phase 2, but this should not be done at the cost of reading everything without understanding and not having conceptual understanding. So I'm repeating it again. The idea is to do at least maybe 70%, not all, but whatever you do it with great consistency, do it with a lot of conceptual understanding so that you can crack any question that comes from that damn subject. So my idea is that if you are starting right now, you should focus on finance, management, costing and company law. These are something you can do easily and score good marks. Economics and accounts, they are like this. It will take time. You need to have patience. Jaldi se nahi hoga, but we are not going to leave economics and accounts completely. So in my study plan, I'm going to discuss what I'm proposing is that you complete management and costing fully from 9th Jan to 20th of Jan and give a lot of sectional mock test. We will discuss about this in detail. Then from 21st Jan to 8th of Feb, you study company law and finance and you do revision of this. Doing revision is very, very important because at times I've seen students that by the time 8th Feb is reached, they would say that sir, company law और finance तो आ गया है, लेकिन management and costing भूल गए हैं. तो वो नहीं होना चाहिए. Sometimes revision is all about having that psychological confidence by consistently looking at your notes every day. ठीक है, then from 8th Feb to 15th of Feb, we can do some selected portion of economics. I'll tell what you can do to have maximum return on your time investment. And then revision would be on focus and full length mock test because we need to prepare ourselves for the exam like environment. Then from 15th to 19th of Feb, again the focus would be on revision and full length mock test, but maybe if we can devote 1 or 2 hours daily on studying some selected portion of accounts. तो ये एक overall broader framework है study plan का which I am proposing you. Obviously you need to customize it as per your needs, as per your background, but this plan is based upon a lot of insights. First is art of doing limited things. I am not asking you to start everything at one go. Let's try to build up pace. Let's try to study limited subjects. Let's try to have understanding on those limited subjects and gain confidence over a period of time. Continuous revision, you can see that we are focusing on continuous revision because that is the key. सारा पढ़ लिया, एग्जाम तक भूल गए, phase 1 clear नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं है. Balanced approach. Now, in these 6 subjects, there is a mixture of numerical and non-numerical subjects. Numerical subjects at times tend to be very time consuming. So what we have tried to do, we have tried to give you a balanced approach that one numerical and one non-numerical subject you can follow. So management with costing is numerical. Company law with finance is numerical, and later also economics and accounts
वेयर अकाउंट्स इज न्यूमेरिकल। ठीक है, एंड रेगुलर टेस्ट पे फोकस करेंगे, चाहे वो सेक्शनल मॉक टेस्ट हो या फुल लेंथ मॉक टेस्ट हो, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई हैव सीन गाइस पढ़ते जा रहे हैं, एप्लीकेशन के नाम पे कुछ नहीं आता है, टाइम मैनेजमेंट के नाम पे कुछ नहीं आता है। गाइस एट द एंड ऑफ द डे इट इज 40 minutes वेयर यू हैव टू प्रूव योरसेल्फ, यू हैव टू गिव योर बेस्ट, एंड दैट विल ओनली कम विद प्रैक्टिस बाय मॉकिंग द रियल टाइम एग्जाम एनवायरमेंट। नॉलेज है, लेकिन EQ इमोशनल क्वेश्चन भी बनाना पड़ेगा। स्ट्रेस को कैसे हैंडल करना है, प्रेशर को कैसे हैंडल करना है, कैसे क्वेश्चंस को छोड़ना है, ईगो पे नहीं लेना है, ये सारी चीजें आपको मॉक टेस्ट देके ही पता चलेंगी। ठीक है, चलिए अब थोड़ा शुरू करते हैं। सो आई विल स्टार्ट विद मैनेजमेंट एंड कॉस्टिंग, राइट, कि इनको हम कैसे कर सकते हैं। सो इफ आई टॉक अबाउट मैनेजमेंट गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल मैनेजमेंट का सिलेबस इज वेरी वेरी लिमिटेड। जनरल मैनेजमेंट, लीडरशिप, मोटिवेशन, HRD, कम्युनिकेशन, इतना भी इजी नहीं है जितना मैंने टिक लगा के दिखाया है, बट ट्रस्ट मी, मैनेजमेंट इज वन ऑफ द easiest portion of your syllabus which can be covered like this, right? And it's very easy to understand. You can just relate to your surroundings, and you will be able to understand everything. ठीक है, moreover in management you can skip videos. It is totally understandable just through your concept notes, and that is advisable also if you have less time. तो मैनेजमेंट इट्स नॉट अ बिग डील, हो जाएगा, बस थोड़ा पैडल दबा के रखना है कि ढीले ना पड़ जाए, देन इन फर्स्ट 5-6 days यू विल बी एबल टू फिनिश मैनेजमेंट। फ्रिंज टॉपिक्स भी हैं, अगर आप पेड कोर्स में हैं तो कुछ फ्रिंज टॉपिक्स भी होंगे। शुड यू डू दोज नाउ? आई वुड से लीव देम लेटर, इफ यू हैव टाइम आफ्टर phase 1 यू कैन लुक एट देम, नॉट राइट नाउ। ठीक है, मैनेजमेंट में से सिंपल क्वेश्चंस ही आते हैं, थोड़े ट्रिकी क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। आई हैव सीन सम क्वेश्चंस इन PFRDA, पर आप उसकी टेंशन ना लें। आउट ऑफ 8-9 जितने भी क्वेश्चन आएंगे, आधे या आधे से ज्यादा तो दे आर गोइंग टू बी सिंपल। ठीक है, तो हमें एटलीस्ट वो तो क्रैक कर ही लेने। तो मैनेजमेंट इज समथिंग दैट यू शुड स्टार्ट इमीडिएटली। फोड़ दो, 4-5 दिन में इसको कर दो, यू विल गेन दैट कॉन्फिडेंस कि यस आई एम ऑन राइट पाथ, आई कैन क्रैक दिस एग्जाम। वो बहुत जरूरी है, कॉन्फिडेंस आ गया तो और स्पीड बढ़ जाएगी। Next is costing guys. Costing में see I have tried to divide your syllabus into 3 brackets. This first pink bracket, then this green bracket and this yellow bracket. I hope you are able to see these colors. अब इसमें जो आपकी green bracket है, basics of cost control and analysis, which consists of standard costing, marginal costing and budget and budgetary control. This is very very important from numerical point of view. आपके जितने भी न्यूमेरिकल्स आएंगे उसमें से 90% न्यूमेरिकल विल बी फ्रॉम दीज 3 चैप्टर्स, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, मार्जिनल कॉस्टिंग, बजट एंड बजटरी कंट्रोल। तो ये आपको बहुत अच्छे से करना है, इस पे स्टार लगा लो, 2 टिक लगा लो, दैट यू हैव टू मास्टर दिस। Another unit is lean system and innovation. The good part is that this unit seems to be very big, but it is very much doable within just 2 hours, and it is plain theoretical topic. कॉस्टिंग से दूर दूर तक इसका कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत बहुत इजी है। अगर आप कॉस्टिंग छोड़ने की भी सोच रहे हैं, इफ यू आर थिंकिंग टू लीव कॉस्टिंग, देन ऑल्सो दिस इज द यूनिट दैट यू शुड बी डेफिनेटली डूइंग, एंड देयर वुड बी एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस यूनिट विच कैन बी क्रैक्ड इजीली। तो ये हमें अगेन करना है बिकॉज इट्स वेरी इजी। देन कमिंग टू द थर्ड यूनिट विच इज अबाउट overview of cost and management accounting and different types of costing like batch costing, process costing, contract costing, service costing, operating costing. तो ये भी हमें पढ़ना है। इसके पढ़े बिना हम ग्रीन वाला ब्रैकेट भी नहीं समझ पाएंगे, पिंक वाला ब्रैकेट पढ़ना है, बट ठीक है, समझ आ रहा है तो जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए, लेकिन ग्रीन वाले ब्रैकेट पे गिव ह्यूज स्ट्रेस। ठीक है, नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट्स विच आई मेड फॉर यू, फर्स्ट इज what I have already told you, that marginal costing, standard costing and budget and budgetary control are very very important, and along with that there is one chapter which is again very important from numerical point of view, that is process costing. Process costing में से भी numerical काफ़ी आते हैं। Second is, if you are preparing from a paid course, there might be a chapter activity based costing in your course. Leave that, that is not required. Third is, if you are preparing again from a prepared course, there would be 3 chapters, material cost, labor cost, overhead cost. ये 3 chapters हैं, ये आपके syllabus में नहीं दिखेंगे। Do you have to do this? Big yes, big yes. Why? First of all, these chapters will set the base. If you will not do these 3 chapters, you will not be able to understand anything in the pink bracket.
तो ये हमको करने हैं. एंड इवन इफ यू पिक अप एनी स्टैंडर्ड बुक, these 3 chapters would always be the first 2-3 chapters. ठीक है. So that was the first reason, because they set the base. Second reason is, since they set the base, there have been questions asked from these chapters in your recently conducted SEBI exam. तो ये उस रीजन से भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, राइट. सो आई होप इससे आपको कॉस्टिंग की स्ट्रैटेजी मिली होगी. आई थिंक इफ यू कैन फिनिश मैनेजमेंट इन 4-5 days, यू कैन इजीली फिनिश कॉस्टिंग ऑल्सो इन नेक्स्ट 6 to 7 days. तो आपका 11-12 दिन में दोनों हो सकता है, अच्छे से हो सकता है. इन कॉस्टिंग द ओनली थिंग दैट यू विल रिक्वायर इज टू हैव पेशेंस. ठीक है, पेशेंस से पढ़ो. किसी किसी चैप्टर में बहुत टाइम लग सकता है, बट देन अगला चैप्टर हो सकता है बहुत जल्दी हो जाए. तो हैव दैट पेशेंस, लीव लेंथी न्यूमेरिकल, दैट इज द ट्रिक यू हैव टू फॉलो. लेकिन छोटे छोटे न्यूमेरिकल, फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल हमें करने हैं. और अगर आप सोच रहे हैं कि मैं फेज 1 तक न्यूमेरिकल नहीं करूंगा, वो फेज 1 के बाद भी नहीं होने वाले हैं, नहीं होने वाले हैं आपसे. फिर करना है तो अभी करो. एटलीस्ट जो सब्जेक्ट कर रहे हो उसको एंड टू एंड करो. आई कैन नॉट इमेजिन यू डूइंग कॉस्टिंग विदाउट डूइंग द न्यूमेरिकल. कॉस्टिंग इज इन फैक्ट अ सब्जेक्ट विच इज बेस्ड ऑन न्यूमेरिकल. तो हमें वो करना ही करना है. So that was about management and costing, right? Then sectional mock test, guys. हमें जो भी हम पढ़ते जा रहे हैं, हमें उन chapters के test देने हैं. There are a lot of chapters if you are preparing. There are a lot of tests for each and every chapter in case you are preparing from paid course. तो वो sectional test दीजिए. Always have a gap. Always have a gap. ठीक है? जैसे आपने मंडे को कोई चैप्टर पढ़ा, do not give that test immediately. मतलब हमें कोई रेस थोड़ी लगानी है कि आज ही वो टेस्ट देना है. तो आपने मंडे को पढ़ा है तो एटलीस्ट गिव 3 days बिफोर यू गिव दैट टेस्ट, सो दैट यू आर एक्चुअली एबल टू चेक योर रिटेंशन व्हेन यू गिव दैट टेस्ट. आपका स्कोर भले ही थोड़ा कम आएगा, बट दैट वुड बी द एक्चुअल स्कोर कॉरस्पॉन्डिंग टू विच यू विल गेट समथिंग इन योर एग्जाम. ठीक है, तो गैप देके टेस्ट दीजिएगा. नाउ आई विल मूव ऑन टू नेक्स्ट ब्रैकेट, दैट इज फ्रॉम 21st Jan to 8th February, कंपनी लॉ एंड फाइनेंस. कंपनी लॉ इज गाइज is very easy. It's conceptual. No, it's factual. रट्टा बहुत है, छोटा है, जल्दी हो जाएगा. रटने को बहुत कुछ है, हम डिस्कस करेंगे कैसे पढ़ना है, बट इट इज मैनेजेबल इन 3-4 days. थोड़ा अगेन पैडल दबा के रखना पड़ेगा. फाइनेंस अगेन इज लेंदी, अनलाइक कंपनी लॉ. फाइनेंस इज लेंदी, but again questions which are being asked are very basic. If you can prioritize your chapters, which I would be telling you, it can be managed easily. ठीक है. एक चीज जो आपको जरूर याद रखनी है, मैंने पहले भी बोला है, when you are reading company law and finance during this bracket of 21st Jan to 8th Feb, ये रिवाइज करना मत भूलिएगा. मैं आपको बार बार बता रहा हूं, नहीं तो आपका सारा मोमेंटम, सारा कॉन्फिडेंस टूट जाएगा 8th Feb तक. अभी कंपनी लॉ कैसे पढ़ना है? ठीक है, कंपनी लॉ में भी अगेन इफ यू सी योर सिलेबस, देयर इज Chapter 3, prospect and allotment of securities, share capital and debentures, declaration of payment and dividend. Chapter 10, audit and auditors. Chapter 11, appointment of directors. Chapter 12, meeting of board and its powers. Chapter 27, NCLT and NCLAT. अब इन चैप्टर्स में से क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये सारे चैप्टर करने हैं. इफ यू आस्क मी सर कोई 2 चैप्टर 3 चैप्टर बता दीजिए जिसमें से मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे, कुछ नहीं, ऐसा कोई नहीं बता सकता. और अगर आपको कोई ऐसा बता रहा है, देन ही और शी इज मिसगाइडिंग यू. ठीक है, तो हम ये सारे चैप्टर्स पढ़ने हैं गाइस, 100% पढ़ने. इसमें से नोबडी कैन टेल यू वेयर दे विल हैव more tendency to ask questions, but yes, within these chapters we can tell you that with what orientation you need to read these chapters, overall orientation, so that you can match your reading style with the tendency of the SEBI from where they ask the questions. ठीक है, तो सारे करने हैं, but yes, there are some fringe topics. Chapter 11 है accounting of companies, chapter 13 is on appointment and remuneration of managers, and chapter 1 basics of company law. ये fringe topics हैं, आपके syllabus में नहीं है. Why we are covering these topics? Again, because these are important aspects of company law. In 2020 also I saw that they asked one question which was not from any of these sections. तो वो पूछ सकते हैं. These are important, but these are fringe topics. If you have time, you can go through these topics, or if you want to leave, you can leave it before phase 1 and do it later. और अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, आप 3 फ्रिंज टॉपिक्स में से एक करना चाहते हैं, देन गो फॉर चैप्टर 1 बेसिक्स ऑफ कंपनी लॉ, विच कंटेन्स डेफिनेशंस ऑफ वेरियस टेक्निकल टर्म्स विच आर आस्क्ड इन द एग्जाम. ठीक है, बाकी जैसा मैंने बताया, फ्रिंज टॉपिक्स को आप बाद में भी कर सकते हैं, फेज 1 के इंपॉर्टेंट है पर अभी छोड़ सकते हैं. कंपनी लॉ को पढ़ना कैसे है गाइज? सो सी,
First is fact based. The approach is fact based. You have to cram every number, whether it is number of days, number of years, any penalty amount, important section numbers, ये सारा आपको क्रैम करना पड़ेगा बिकॉज क्वेश्चंस आर फैक्ट बेस्ड. आप क्वेश्चंस देखिए सारे फैक्ट बेस्ड हैं. 2020 का 21 का जो पेपर था सारे फैक्ट बेस्ड हैं. Definitions, technical definitions. Now, definition of a relative, as in English we know that what is the meaning of word relative, but when it comes to the technical definition of relative, you need to understand that what is written in the company law. So ये definitions बहुत important है company law में. relative की हुई, private company की हुई, like this there are many other definitions. ठीक है. Section numbers यहाँ पे मैंने आपको बताया था, you need to read the section numbers. Which section numbers are important? Because it is not easy to remember all the section numbers. How will I know that which section numbers are important? आपको सिर्फ important section numbers याद रखने हैं. वो important section numbers कौन से हैं? The thumb rule is that if any section is giving some power, some authority to any entity, then that section number is important. Suppose any section number gives auditor the power to cancel the license of the company, then that section number is important. Auditor is getting some big power there. Okay. On the same lines, if you see the question that was asked in 2021 exam is which section of the Companies Act gives power to SEBI to issue capital and do transfer of shares? Now, why this was asked that which section number is this? Because this section is giving some huge power to SEBI. ठीक है, और वो सेक्शन गया था सेक्शन नंबर 24 नंबर. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू कन्वे. ये थंब रूल रखिएगा. ठीक है. अगेन, अगर लगता है कि ग्रे एरिया, यू आर नॉट एबल टू डिसाइड वेदर इट इज समथिंग इंपॉर्टेंट और नॉट, देन मे बी डू इट रेदर देन लीविंग इट. बट इससे आप काफी ज्यादा फिल्टर कर पाएंगे. ठीक है. नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दीज सेक्शन नंबर्स is concept based things. Concept based कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए. Now in company law there would be lot of instances where you will study that some power has been given to some entity, some major responsibility has been given to one entity. So those areas become very, very important. Let us try to analyze the questions that were asked in 2020 exam. The auditor can be removed before expiry of his term by which of the following? क्वेश्चन है कि ऑडिटर को एक्सपायरी से पहले कौन रिमूव कर सकता है. आंसर था शेयर होल्डर्स. बहुत इजी है. व्हेन यू विल रीड दिस इन योर सोर्स दैट ऑडिटर कैन बी रिमूव बाय द शेयर होल्डर्स बिफोर द एक्सपायरी, इट इज वेरी इजी. यू विल से दैट ओके, आई हैव अंडरस्टूड दैट, आई विल रिमेंबर दैट. बट व्हाई दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस बिकम टफ when these are asked in the exam? The reason is that in company law at various places different entities would have different power. At some place board of directors will have some power, at some place shareholders will have some power, at some place auditors will have some power, at some place say SEBI would have some power, at some place central government would have some power. तो होता क्या है, जब ये क्वेश्चन आता है यू आर नॉट एबल टू डिस्टिंग्विश कि इस पर्टिकुलर एरिया में किस एंटिटी को पावर दी गई थी, एंड यू आर कंफ्यूज्ड, और वहां पे आपके 2 मार्क्स चले जाते हैं. इनफैक्ट कहीं के तो 2.66 भी चले जाते हैं. ठीक है. तो ये बहुत जरूरी है कि आप डिफरेंशिएट करें एरियाज को कि इस एरियाज में सेबी के पास पावर है, इस एरिया में शेयर होल्डर्स के पास पावर है. तो अपने माइंड में वो डिफरेंशिएशन करनी बहुत ज्यादा जरूरी है. सिमिलरली अनदर क्वेश्चन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल कैन बी डन विद द अप्रूवल ऑफ. कि शेयर कैपिटल को कोई कंपनी रिड्यूस कैसे कर सकती है, किसके अप्रूवल के साथ? आंसर वाज स्पेशल रेजोल्यूशन. बट अगेन seems easy, but it can be confusing for the same reasons which I just told you minutes before. ठीक है. तो ये समझ आ गया कंपनी लॉ कैसे पढ़ना है. इसको ब्रॉडर फ्रेमवर्क लेके चलोगे तो कंपनी लॉ जो बहुत बड़ा लगेगा बहुत छोटा हो जाएगा और बहुत जल्दी जल्दी हो जाएगा. सो नेक्स्ट आई विल कम टू फाइनेंस. इन आवर 21st Jan to 8th Feb bracket we had 2 subjects, company law and finance. Now coming to finance. फाइनेंस में फर्स्ट ऑफ ऑल गाइज एक पॉइंट सबसे पहले ही बता देना चाहूंगा कि जो मैंने यहाँ पे येलो में हाईलाइट किया है, आप उन चैप्टर्स के नोट्स पढ़ लीजिए, सीधा वीडियोस छोड़ दीजिए वीडियोस उनकी, सीधा नोट्स पढ़ लीजिए. ठीक है. बट फॉर अदर चैप्टर्स यू माइट रिक्वायर टू वॉच द वीडियोस टू अंडरस्टैंड देम एंड टू एंड. अब आपके कोर्स में अगर आप कोर्स से पढ़ रहे हैं, देयर वुड बी टाइम वैल्यू ऑफ मनी विच इज नॉट इन योर सिलेबस, बट इफ यू हैव टू अंडरस्टैंड बॉन्ड्स विच इज इन योर सिलेबस, you need to understand the time value of money which will set the base. but time कम है तो time value of money छोड़ दो. पर अगर time value of money छोड़ दिया, then when you will do bonds,
you will have to leave those numericals also, because otherwise you will have to come back to time value of money to understand the concept. ठीक है, बाकी ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है. बॉन्ड्स हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया. डेरिवेटिव्स में ऑप्शंस आपके सिलेबस में नहीं है, बट क्वेश्चंस हैव बीन आस्क्ड फ्रॉम ऑप्शंस इन आरबीआई आल्सो, इन सेबी आल्सो इन द पास्ट. ठीक है, these are very very important guys. Mark these chapters, mark my words, there would be questions from these chapters: primary and secondary market, equity market, primary and secondary market, debt market. Equity valuation को आप छोड़ दीजिए. म्यूचुअल फंड्स यू कैन जस्ट हैव अ वेरी कर्सरी रीडिंग. ठीक है, सिलेबस में नहीं है लेकिन ईजी है. जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर म्यूचुअल फंड्स, हु रेगुलेट्स देम, अबाउट एनएवीज एंड ऑल दीज थिंग्स. दैट्स मोर देन एनफ. बाकी ये बहुत आसान चैप्टर है. फाइनेंशियल इंक्लूजन, अल्टरनेट सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, दिस आई डू नॉट काउंट एज फाइनेंस. यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दैट. फॉरेक्स मार्केट्स, मे बी इफ यू हैव लेस टाइम यू कैन लीव दिस ऑल्सो. राइट. फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई फंक्शंस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यू कांट स्किप इट. ठीक है, बाकी जो नीचे वाले चैप्टर हैं, चेंजिंग लैंडस्केप इन द बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस लाइक सिडबी, एक्सिम बैंक, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ इंडिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस इन जीएसटी, एफआरबीएम एंड फाइनेंस कमीशन, आप इनके थ्योरी पढ़ लीजिएगा. एंड वी हैव revamped many of these chapters like direct and indirect taxes and GST. ठीक है, कोर्स में नहीं रिवैम्प हुए हैं तो भी हो जाएंगे. द वर्क एट आवर एंड इज कंप्लीटेड, वी हैव सेंड देम फॉर अपलोडिंग. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है. लास्ट ईयर देयर वर सम गुड क्वेश्चंस फ्रॉम दिस रिलेटेड टू टैक्सेशन एंड जीएसटी इन योर एग्जाम, तो हमने इसको काफ़ी रिवैम्प किया है. यू विल फाइंड सम गुड कंटेंट हेयर, तो इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा. बाकी आपके अगर आप पेड कोर्स से पढ़ रहे हैं देन देयर वुड बी सर्टन चैप्टर्स लाइक इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो एंड रेशियोज. आप उसको छोड़ सकते हैं, बिकॉज नाउ सिंस these chapters are also part of accounts, we will cover them as part of accounts. ठीक है, तो फाइनेंस में आपका ये मैंने बता दिया है. ठीक है, जो आप लीव कर सकते हैं, जहां पे आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, वो सारा आई होप आपको क्लियर होगा. ठीक है, और ये चैप्टर्स बहुत अच्छे से करिएगा. बार बार बोल रहा हूँ, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स इक्विटी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स डेट, डेरिवेटिव्स, और ये फिस्कल पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, आरबीआई फंक्शंस. ये हो गया तो आधे से ज़्यादा फाइनेंस आपका अच्छे से हो गया. ठीक है, बाकी फाइनेंस में आई हैव सीन दैट जो आपके चैप्टर्स हैं प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स वाले, देयर आर लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स डिस्कस्ड इन दोस चैप्टर्स लाइक टी बिल्स, सीओडीज, कमर्शियल बिल्स. उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस अच्छे से याद कर लीजिएगा. बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस रहती हैं. ठीक है, देन करंट अफेयर्स फाइनेंस में, वैसे तो आई फील दैट सेबी में करंट अफेयर्स का रोल नहीं है, बट स्टिल इफ यू वांट टू रीड सम करंट अफेयर्स, रीड आरबीआई एंड सेबी न्यूज ओनली, or any important bill or reform by Ministry of Finance, or at the max news related to IRDA and PFRDA. मतलब फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड सेबी, PFRDA, IRDA, RBI, इनकी न्यूज़ ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं जो पेपर 2 में पूछ सकते हैं. न्यूमेरिकल की बात करें तो बॉन्ड्स, डेरिवेटिव्स और इक्विटी, इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल आ सकते हैं. रेशियोज एनीवेज हम अकाउंट्स में करेंगे तो मैं इसको अभी काट देता हूँ. ठीक है, सो दैट वाज अबाउट कंपनी लॉ एंड फाइनेंस. ठीक है, ये मैं अगेन बता रहा हूं, इसको रिवाइज जरूर करिएगा ड्यूरिंग दिस पीरियड. नाउ कमिंग ऑन टू द थर्ड ब्रैकेट, 8th Feb to 15th Feb. ड्यूरिंग दिस ब्रैकेट गाइज आवर मेन फोकस इज गोइंग टू बी ऑन रिवीजन एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट. रिवीजन एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट, हमें बहुत अच्छे से रिवीजन करनी है, बहुत सारे फुल लेंथ मॉक टेस्ट देने हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड. ठीक है, भले ही हमें इकोनॉमिक्स का ज़्यादा ना टाइम मिले इकोनॉमिक्स के लिए, बट हमें फोकस करना है फुल लेंथ टेस्ट और रिवीजन पे, सो दैट एटलीस्ट व्हाट वी हैव प्रिपेयर्ड वी आर एबल टू गेट मैक्सिमम बाउंटी आउट ऑफ दैट. ठीक है, तो इकोनॉमिक्स पे थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, क्या हम कर सकते हैं. देखिए, इकोनॉमिक्स में आई हैव डिवाइडेड दैट इनटू माइक्रो एंड मैक्रो. इन मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट्स, मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, एनबीएफसी. अब इसमें से मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये तो आप एज पार्ट ऑफ फाइनेंस कर ही चुके होंगे, ज़्यादा बचेगा नहीं. ठीक है, इन्फ्लेशन, बिजनेस साइकिल, बैलेंस ऑफ पेमेंट, एनबीएफसीज, दीज आर वेरी इजी चैप्टर्स, यू कैन डायरेक्टली रीड द नोट्स, ये आपके आसानी से हो जाएंगे. सो दिस इज समथिंग, मैक्रो इज रियली इजी फॉर यू. द मेन प्रॉब्लम वुड बी टू डू द माइक्रो पार्ट. मैक्रो तो आप 2-3 दिन में ये खत्म कर सकते हैं. 3 चैप्टर तो आपके पहले ही हो गए हैं, 3-4 चैप्टर लगे, वो आप 2-3 दिन में खत्म कर सकते हैं. रेस्ट 4-5 days यू शुड बी फोकसिंग ऑन दैट. हियर दिस चैप्टर इज वेरी इजी. डिमांड एंड सप्लाई बहुत ईजी है, आप आराम से पढ़ सकते हैं.
ठीक है, ये आप छोड़ दीजिए, दिस इज इंक्लूडेड इन योर कोर्स बिकॉज बाय रीडिंग दिस यू गेट अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ market structures, that is perfect competition, monopoly, monopolistic. बट टाइम नहीं है तो अभी आप इसको छोड़ दीजिए एंड डायरेक्टली डू दिस वॉट एवर यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, लेट इट बी. ठीक है, तो ये बहुत अच्छे से करना है, ये कर लेना है. उसके बाद आई थिंक दिस इज द एरिया विच इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट फॉर यू. स्टार्टिंग फ्रॉम नेशनल इनकम टिल ISLM, दिस इज काइंड ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स, classical and Keynesian approach, consumption function, investment function, multiplier, accelerator, demand and supply for money, ISLM. This is micro, can be tough at times, or I would say will be tough for you guys. But हमें मैनेज करना है, तो मैं इसमें यही कहूँगा कि आप नेशनल इनकम, क्लासिकल Keynesian अप्रोच कर लीजिए, इसको छोड़ दीजिए. डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड. M1, M2, M3, M4 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ISLM भी आप कर पाएंगे. ठीक है, और बाकी ISLM भी नहीं होता तो एटलीस्ट ये 3 कर लीजिए, नेशनल इनकम, क्लासिकल एंड Keynesian अप्रोच एंड डिमांड एंड सप्लाई फॉर मनी. ठीक है, तो ओवरऑल देखिए अगेन आवर गोल इज नॉट टू मास्टर इकोनॉमिक्स बिफोर फेज 1, लेकिन जितनी करें ठीक करें, बाकी फेज 1 के बाद कर लेंगे. तो मैक्रो तो इट्स लाइक समथिंग रेडी टू बी ईटन ऑन योर प्लेट. हियर यू माइट हैव डिफिकल्टी बट हैव पेशेंस. ठीक है, और इकोनॉमिक्स में क्वेश्चंस बहुत बेसिक आते हैं गाइस. आई हैव सीन लास्ट ईयर, आई मीन इफ यू स्टार्ट रीडिंग दिस इन डेप्थ तो उसका कोई एंड नहीं है. दिस इज द सिलेबस विच इज इवन आस्क्ड इन आई वुड से UGC नेट ऑफ इकोनॉमिक्स. तो उसके लिए पूरी पूरी किताबें हैं, बट यू नीड नॉट गो टू दैट लेवल. हमें बहुत बेसिक लेवल पे करना है. प्रीवियस ईयर पेपर्स को देखते रहिए कैसे क्वेश्चंस आए हैं, दैट विल गिव यू अ बेटर क्लैरिटी. ठीक है, सो फुल लेंथ मॉक टेस्ट के बारे में मैं बाद में बात करूंगा. नाउ कमिंग ऑन टू द लास्ट ब्रैकेट, हेयर भी हमारा फोकस रिवीजन पे रहेगा, फुल लेंथ मॉक टेस्ट पे रहेगा. बट इफ वी कैन से फाइंड आउट 2 hours, 1.5 hour डेली फॉर अकाउंट्स, एटलीस्ट वी विल बी एबल टू कवर द बेसिक चैप्टर्स. वो बेसिक चैप्टर्स क्या है जो मैंने यहाँ पे येलो में हाईलाइट किए हैं. इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटेंसी, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस पार्ट 1, ट्रायल बैलेंस एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज. ठीक है, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज रिपीट हो गया है. देन इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो एंड रेशियो एनालिसिस. अगर आप इतना कर पाए एज पार्ट ऑफ अकाउंट्स, ठीक है, रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस आप छोड़ दीजिए, पार्ट 2, पार्ट 1 कर लीजिएगा. I think this can give you good marks. This can give you value for the time that you would be investing in these chapters. And once you have done these chapters, you would be immediately ready to cover the rest of the chapters after phase 1 because you would have understood the basics of account. उसके बाद तो मतलब आप आधी नींद में भी पढ़ेंगे तो कुछ कुछ समझ आ जाएगा. But these first 6 chapters are really going to test your patience. आपको इसको थोड़ा आराम से करना पड़ेगा. ठीक है, तो ये चैप्टर आपके सिलेबस में नहीं दिए होंगे. अगर आप देखें तो मतलब थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग, रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस, ट्रायल बैलेंस, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, ये आपके सिलेबस में नहीं है टिल हियर. बट दीज आर द चैप्टर्स विच विल सेट द बेस. आप कोई भी NCERT उठा लीजिए, कोई भी बुक उठा लीजिए, दीज आर द फर्स्ट कंसेप्ट्स दैट आर टॉट एवरीवेयर. एंड आई थिंक दे आर ऑल्सो एज्यूमिंग कि अगर आप सिलेबस को समझेंगे तो पहले ये तो करेंगे ही. So like what I told you in costing, here also these chapters will set the base, and from these chapters there have been questions asked in your 2021 exam. Errors पे question आया था. What we study in trial balance, there was a question on bills of exchange also, there was a question on principles of accounting also which we study in theory base of accounting. 3 questions आए थे आपके यहाँ से. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें मतलब इतना तो पढ़ना ही पढ़ना है, चाहे मतलब एग्जाम में 2 ही क्वेश्चन आए यहाँ से, बट वी शुड बी रेडी विद द बेसिक्स ऑफ अकाउंटिंग बिफोर फेज 1. So that after phase 1 we can immediately shift our gears and complete the remaining question. Phase 1 के बाद भी ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास 3 महीने आराम से करेंगे, 1 ही महीना है ना. ठीक है, बाकी अकाउंट्स में मतलब अगेन थ्योरी कुछ नहीं होती है. अकाउंट्स इज ऑल अबाउट क्रेडिट एंड डेबिट, तो आपको वो करना ही पड़ेगा गाइस. ठीक है, एंड दे विल आस्क यू क्वेश्चंस लाइक दिस कि क्या क्रेडिट होगा, क्या डेबिट होगा. फॉर एग्जांपल, प्रॉफिट ऑन फॉरफीचर ऑफ शेयर्स इज ट्रांसफर्ड टू. ठीक है, तो आई थिंक इसका आंसर कैपिटल रिजर्व है. तो ऐसे क्वेश्चंस ही आएंगे वहां पे. न्यूमेरिकल कम, ऐसे थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आएंगे, बट दीज थ्योरेटिकल क्वेश्चंस कैन नॉट बी क्रैम्ड. दीज कैन बी डन ओनली इफ यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. ठीक है, बाकी लॉजिकल सब्जेक्ट है, जो भी पढ़े पेशेंस से पढ़े. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, ऐसे नहीं होगा जल्दी में.
ठीक है। और इंडी एएस अगर आप पूरा अकाउंट पढ़ने का प्लान कर रहे हैं तो इंडी एएस तो बिल्कुल मत पढ़िएगा, इंडी एएस आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम। ये मैं एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, इंडी एएस ना ही तो सेबी में पूछे गए, ना ही पीएफआरडी में पूछे गए, ना ही एनपीएस में पूछे गए, ना ही और भी अकाउंटिंग के जो पेपर हुए हैं उनमें नहीं पूछे गए, तो हमें इंडी एएस नहीं करने हैं, ठीक है। बाकी that's all for these 6 subjects. Now how to give sectional mock test, I've already told you, have a gap of 3 to 4 days, then attempt the sectional mock test, right? That will give you better clarity where do you stand, and after giving the mock test please एनालाइज करते हुए आप ये देखिए कि क्या आप कोई सिली मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं तो अपने आप को थप्पड़ मारिए दो, क्योंकि विद दो सिली मिस्टेक्स यू विल नेवर बी एबल टू क्लियर द एग्जाम। एनालाइज करते हुए ट्राई टू एनालाइज वेदर यू आर नॉट एबल टू सॉल्व समथिंग, वेदर यू आर नॉट एबल टू अटेम्प्ट समथिंग बिकॉज यू हैव फॉरगॉटन दैट कंसेप्ट। अगेन अपने आप को थप्पड़ मारिए, आपने जो पढ़ लिया है आप उसमें से भी क्वेश्चन नहीं कर पा रहे हैं, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग विद योर स्ट्रैटेजी। रिवीजन से आप नहीं भूलेंगे, यही इंश्योर करना है। तो सिली मिस्टेक और रिवीजन बिल्कुल भी अलाउड नहीं है इफ यू हैव टू, और इफ यू वांट टू, और इफ यू एस्पायर टू compete at an ऑल इंडिया लेवल, ठीक है। कंसेप्चुअल मिस्टेक्स होती हैं, आई एम नॉट आस्किंग कि 50 में से 50 हैं, कंसेप्चुअल मिस्टेक होंगी। 50 में से हमें 40 क्वेश्चन ही ठीक करने हैं, 38 ही ठीक करने हैं, बट वो 12 क्वेश्चन ऐसे नहीं होने चाहिए कि आई एम डूइंग सम सिली मिस्टेक्स और आई एम डूइंग सम मिस्टेक्स बिकॉज आई डोंट रिमेंबर व्हाट आई हैव रेड। FLTs कब देने हैं? I have told here start giving FLTs. So from 8th of Feb you should be giving FLTs. ठीक है, पूरा सिलेबस नहीं हुआ बट जितना हुआ है उसी से FLTs दीजिए, और देन यू ओनली यू विल बी एबल टू टेस्ट दैट यू आर एबल टू गेट से दैट 40+ मार्क्स, ठीक है। और FLTs को प्रॉपरली एनालाइज कीजिए ऐसे ही जैसे मैंने यहां पे बताया, ठीक है। कैन आई लीव न्यूमेरिकल इन माई प्रिपरेशन? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। Even if you clear phase 1, what I saw last year many people did without numericals. Last year phase 1, paper 1, paper 2 थोड़ा अजीब आया था. I don't expect it to be the same this year. पर आप बिना न्यूमेरिकल किए एग्जाम नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो ये स्ट्रैटेजी शॉर्ट टर्म के लिए मत अपनाइए दैट आई विल गिव phase 1 विदाउट न्यूमेरिकल्स, देन टाइम विल नेवर कम व्हेन यू विल डू न्यूमेरिकल, ठीक है। करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट है या नहीं? मेरे हिसाब से टाइम कम है तो छोड़ दो, बिल्कुल भूल जाओ, मिट्टी में डाल दो करंट अफेयर्स को। अगर टाइम ही नहीं है कोई फायदा नहीं है करंट अफेयर्स करने का। अगर करने हैं तो जैसा मैंने आपको बताया, थोड़े बहुत RBI, SEBI, PFRDA, IRDAI रिलेटेड जो भी न्यूज़ हैं, नोटिफिकेशंस हैं, या कोई फाइनेंशियल सेक्टर में इंपॉर्टेंट बिल्स या रिफॉर्म्स आए हैं, आप उनके बारे में पढ़ लीजिए। ज़्यादा इस पे टाइम मत खपाइएगा, दिस इज नॉट गोइंग टू गिव यू वैल्यू फॉर योर एफर्ट, वैल्यू फॉर योर टाइम इन्वेस्टमेंट, ठीक है। बाकी बहुत लोग पूछते हैं सर पेपर में किस कंपोनेंट की कितनी वेटेज है, ऐसा कुछ मेंशन नहीं है नोटिफिकेशन में, बट लास्ट ईयर इफ यू सी द पेपर इट वाज रियली बैलेंस्ड, ऑलमोस्ट 8, 9, 10 क्वेश्चन सारे कंपोनेंट में से आए थे। आई थिंक दे डिड देयर बेस्ट टू बैलेंस द एग्जाम, ठीक है। एक्यूरेसी इज द की, ये आपको याद रखना पड़ेगा। देखिए लास्ट ईयर का पेपर देखिए, एनालाइज करें, सो देयर वर 24 इजी क्वेश्चंस, 18 मॉडरेट एंड 8 डिफिकल्ट। आपको सिलेक्शन के लिए आई वुड से 70% मार्क्स चाहिए। आई एम टॉकिंग अबाउट नाउ फेज 2, ठीक है। फेज 1 में तो 40+ लेके आप क्लियर कर ही जाओगे, बट हम अगर फेज 2 की प्रिपरेशन लेवल की बात करें, यू नीड 70% मार्क्स। तो अगर आप इजी क्वेश्चंस में 90% एक्यूरेसी ले आए और जो आपके मॉडरेट क्वेश्चंस हैं वहां पे 75% एक्यूरेसी ले आए, विच इज नॉट इजी बट दैट इज नॉट समथिंग विच इज रियली डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल, आ सकती है। ध्यान से एग्जाम करेंगे, एप्लीकेशन से क्वेश्चंस को लगाएंगे तो ये मुश्किल नहीं है, और अगर इतना कर लिया तो स्कोर आपका 65 से 70 की रेंज में पहुंच जाएगा। देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट कि आप इन 8 में से 2 कर पाते हैं या 3 कर पाते हैं, जो 4 कर जाएगा वो अपनी सिलेक्शन इंश्योर कर लेगा, बट 2 करके भी आप 70 आराम से क्रॉस कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्यूरेसी इज द की। अगर आप एग्जाम में इजी में से ही 25% गलत की कराए तो स्कोर आपका 70% टच करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। मतलब जो आता है उसको सही करना है, जो नहीं आता है उसमें से बस नेगेटिव मार्किंग अवॉइड करनी है, जहां पे थोड़ा इंटेलिजेंट गेस लग सकता है वहां पे ही लगाएं, ठीक है। न्यूमेरिकल मैंने बोला है न्यूमेरिकल बहुत जरूरी है। पिछली बार 11 नंबर के न्यूमेरिकल आए थे, 11 नंबर नहीं 11 क्वेश्चंस, 22 मार्क्स आउट ऑफ 100 वर न्यूमेरिकल्स। फाइनेंस में 2 क्वेश्चंस, कॉस्टिंग के 4 और कॉमर्स एंड अकाउंट्स के 5।
तो 11 क्वेश्चंस 22 मार्क्स. You can't afford to miss these numericals. You can't clear this exam without focusing on these numerical. ठीक है. बाकी PYQ जरूर कीजिए guys. They are available for free on our website. That will give you clarity till what depth and with what orientation you need to read the papers. बाकी पेपर आपका सिलेबस में से ही था. ज़्यादा सिलेबस के इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है. If you can cover the syllabus, that will give you the best chance to put your foot into the door to get into SEBI. ठीक है. और थर्ड इज कवर द बेसिक टॉपिक्स. जैसा कि मैंने आपको बताया कुछ टॉपिक्स कॉस्टिंग एंड अकाउंट्स में आपके सिलेबस में नहीं है, बट वो बेसिक हैं, वो आपका बेस सेट करते हैं. यू हैव टू डेफिनेटली डू देम. अगर आप उनको नहीं करेंगे तो आप बाकी टॉपिक्स भी नहीं समझ पाएंगे. सो डोंट ट्राई टू जंप ऑन टू द टॉपिक्स विच आर क्लियरली मैपिंग टू द सिलेबस. इफ समथिंग इज गिवन इन योर कोर्स और समथिंग इज गिवन in your book, at the start, try to read those chapters because that will ultimately make the base for you to understand further chapters. ठीक है. So that's it guys. I hope आपको ये समझ आई होगी सारी स्ट्रैटेजी. अगर आप में पेशेंस है तो आपने सारी वीडियो सुनी होगी and you are here and I really thank you for that. तो अगर आपने सारी वीडियो सुनी है उसके बाद भी आपका कोई डाउट है, so I request you to put that doubt in the comment section. I'll make sure that that doubt is addressed. अपना email ID जरूर छोड़िएगा कमेंट के साथ. We will try to reply to your doubt over your email. Have a nice day. Bye-bye.